Morning, my dear students. Today I am going to teach you chapter number 10th, conjunction and its kind, page numbers 63 and 64. This is part 2. Hope you understood about conjunction in the previous video. In this video we are going to learn about the kinds of conjunction. Conjunction के कितने kinds होते हैं वो हम और उनका क्या क्या यूज़ होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. So here you can see is in previous video we have learned about conjunction and kinds or types of conjunctions are coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. Kinds of conjunction, three kinds के conjunction है: coordinating conjunction, subordinating and correlative. Coordinating conjunctions are it join two independent statements or equal importance, and subordinating it join two statement one of which dependent on the other. कोऑर्डिनेटिंग में हम कोई भी इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट को कोई भी दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं. सबऑर्डिनेट में हम दो स्टेटमेंट को ही मिलाते हैं. सबऑर्डिनेट में एक जो स्टेटमेंट होती है वो दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड होती है, राइट. कोरिलेटिव कंजक्शन आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर. कोरिलेटिंग कंजक्शन जो होता है उसको हम हमेशा पेयर में दो के साथ यूज करते हैं. वी विल लर्न मोर अबाउट देम. सो यू कैन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजक्शन. वी विल learn more about kinds of conjunction. Here you can see there are three types of conjunction, three kinds of conjunction: coordinating, subordinating and correlative conjunction. And first, what is coordinating conjunction? Coordinating conjunction क्या होता है? Coordinating conjunction word से हमें क्या पता लगता है? Coordinate मतलब दो चीज़ों को coordinate करके चले, मिला के चले, right? So here you can see a coordinating conjunction connects words or group of words that are independent of each other. Coordinating conjunction होता है वो जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को, शब्दों को या ग्रुप शब्दों के समूह को कनेक्ट करता है. कोई भी इंडिपेंडेंट शब्द को उसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट, कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट वर्ड, वो वर्ड्स को भी कर सकता है कनेक्ट या फ्रेजेस को भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी, ठीक है, उसको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं. Through example now. Main 7 coordinating conjunctions are, जो main coordinating conjunction है वो 7 जो हैं वो ये हैं: for, and, nor, but, or, yet, so. See, coordinating conjunction का famous acronyms हम जो बनाते हैं वो ये होता है fanboys. Fanboys means F stands for A for an, जो मैंने अभी आपको बताया फैन बॉयज होता है. 7 जो मेन उसके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? F फॉर फैन, फैन बॉयज होता है. और इसको हम कैसे बोलते हैं? F फॉर, A फॉर and फॉर नॉर, B फॉर बट, O for or, Y for yet, S for so. So here the famous acronym is fanboys. इसके थ्रू हम इसको लर्न करते हैं जिससे हमें वो याद रहता है. fanboys मतलब F for, इस टाइप से हम इनको लर्न करते हैं. We will learn coordinating conjunction through example. Hair and gray are sold here. hair और gray जो है, grain जो है वो यहाँ पर बेचा जाता है, sold here. Right? So here you can see and use हुआ, right? Next sentences is will you take tea or coffee? क्या आप टी लोगे, चाय लोगे या फिर आप कॉफ़ी लोगे? और आ गया इसमें तो और and जो उसमें आया वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एग्जाम्पल इज he was pale but, right? So but इसमें यूज हुआ तो but is a conjunction in this sentence. For example is the teacher replied seriously and firmly.
टीचर ने रिप्लाई किया courteously और firmly, but here is used as a coordinating conjunction. Here you can see we have taken 4 examples. है and grain are sold here. तो and जो है इसमें conjunction है, ठीक है, coordinating conjunction है क्योंकि वो coordinate कर रहा है, दो चीज़ों के बारे में बता रहा है, right? Will you take tea और coffee? आप टी लोगे या फिर कॉफ़ी लोगे, और आ गया तो वो coordinating conjunction है. He was pale and undoubted, but आ गया तो वो भी coordinating conjunction है. The teacher replied but firmly, तो but भी जो है वो coordinating conjunction है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था fan boys वाला रूल. तो fan boys के अकॉर्डिंग ये सारे coordinating conjunction हैं जो coordinate करके चलते हैं दो अलग स्टेटमेंट्स को. जैसे इससे पता चल रहा है जो है और ग्रेन दोनों यहाँ बेचे जाते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट. टी और कॉफ़ी भी दोनों अलग अलग चीज़ें, पेल और अनडाउटेड भी अलग चीज़ें हैं. और इधर इन द लास्ट सेंटेंस यू कैन सी कोर्टियसली और फर्मली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो होते हैं जो टू स्टेटमेंट्स को जॉइन करते हैं, बट एक स्टेटमेंट जो होती है वो डिपेंड होती है दूसरी स्टेटमेंट पे. A subordinating conjunction connect a subordinate clause with the clause on the which it depend. मतलब वही सेम हो गया, स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं दो स्टेटमेंट को, बट एक स्टेटमेंट जो होती है वो दूसरे स्टेटमेंट पे क्लॉज पे ज्वाइन करते हैं, डिपेंड होती है, उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं. और हम उनको इंडिपेंडेंट कंजक्शन भी क्लॉज भी बोल देते हैं, राइट. जैसे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में फैन बॉयज का रूल था, इसमें ऐसा रूल नहीं है कोई भी. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ वर्ड्स होते हैं ऑल्दो, दो, एज इफ और एज दो, बिकॉज, इफ और सिंस, दैट, अनलेस, वेयरएज, व्हाइल. दीज आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स. बट जैसे ही फैन बॉयज हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का है, ऐसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का है हमारा habits, right? S stand for since, W stands for when, although, because, if, that, so that, right? So here remember this acronym कौन सा हमने यूज किया? SWABITS, right? SWABITS. So उसका फैन बॉयज था, इसका SWABITS है एक्रोनिम जो हमने यूज किया. तो इससे यू कैन रिमाइंड कि ये कौन सा वाला कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेटिंग है. कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और फैन बॉयज जो था वो कोऑर्डिनेटिंग था और ये सबऑर्डिनेटिंग है, राइट. वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू द एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ऑल्दो शी वॉज डेंजर, शी सॉ डेंजर, उसने खतरा देखा. मार्था वॉज नॉट अफ्रेड, उसने ऑल्दो उसने खतरा भी देखा, डेंजर देखा, बट माल्ता जो डरी नहीं, वो नॉट अफ्रेड, वो डरी नहीं. ऑल्दो इसमें यूज हुआ तो ऑल्दो इज अ सबऑर्डिनेटिंग क्योंकि फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो क्लॉज आप देखिए वो सेकंड वाले को डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंडेंट है कि वो शी वॉज डेंजर, वो बहुत खतरे में थी पर वो फिर भी नहीं डरी, राइट. एंड है पे सेकेंड स्टेटमेंट सेंटेंसेस, इफ़ यू प्रेफर टेक दिस सीट, अगर तुम चाहो तो ये सीट ले सकते हो. इसमें यू प्रेफर जो आ गया वो वाला क्लॉज जो है वो टेक दिस सीट पे डिपेंडेंट है, मतलब एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इफ लगाया. तो ये कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड है. बिकॉज इट वॉज रेनिंग यू कुड नॉट गो आउट टू प्ले, बारिश हो रही है इसलिए तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते, ये भी डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने बिकॉज यूज किया. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पर. You understood about coordinating conjunction and subordinating conjunction. Now only the third kind of conjunction, correlated conjunction, is left. We are going to learn about that. Now correlative conjunction क्या होता है? Conjunction that are used in pair, वो conjunction जो
जोड़े के साथ, पेयर के साथ यूज होता है, उसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं, राइट? वी विल लर्न मोर अबाउट दिस. कोरिलेटिव कंजक्शन कनेक्ट टू इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स. और कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव कंजक्शन जो होता है वह दो इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स जो होता है उनको भी जोड़ता है, कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, कोरिलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? एंड, बोथ, एंड दोनों आते हैं. पेयर में दो, मैंने बताया था आपको कि दो पेयर में जो हम यूज करते हैं कंजक्शन को, उनको हम कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं. जैसे बट एंड, नॉट ओनली बट सो बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, yet, although yet, since therefore, if then. Now we will learn through example. First example here is both lions and wolves are carnivorous. दोनों लाइन भी और लाइन्स भी और वॉल्व्स भी दोनों कार्निवोरस होते हैं, राइट? तो बोथ भी इसमें आ गया और एंड भी आ गया. दो इसमें कंजक्शंस यूज हुए, तो इसको हम बोलेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विलियम द सेकेंड वॉज नॉट ओनली द जर्मन एम्परर बट ऑल्सो द किंग ऑफ पर्शिया. ठीक है, विलियम जो है वो सेकेंड ही नहीं है एम्परर जर्मन का, वो ऑल्सो द किंग ऑफ पर्शिया, वो पर्शिया का भी राजा है. सो हियर यू कैन सी दो कंजक्शंस यूज हुए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, राइट? सो this sentence is a correlative conjunction used in this sentence. Next example, either brass or copper will do. तो ब्रास या फिर कॉपर करेगा वो चीज, तो आइदर भी आ गया और भी आ गया. दिस इज अगेन अ कोरिलेटिव कंजक्शन. नेक्स्ट इज नाइदर कैटीज नॉर शैली लिव्ड टू बी ओल्ड. ना तो कैटी ना ही शैली बूढ़ी नहीं है, राइट? सो नाइदर भी आ गया, नॉर भी आ गया, तो कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया. अगेन यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल हेयर. She asked me whether I was American or Canadian. उसने मुझसे पूछा कि वेदर, कि मैं अमेरिकन हूँ या फिर मैं कैनेडियन हूँ. सो हेयर वेदर भी यूज हुआ और भी यूज हुआ. दिस स्टेटमेंट इज कोरिलेटिव कंजक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थ्रू द रोड दो द रोड वर वेरी बैड. रोड जो है वो बहुत खराब हैं. येट ही मैनेज टू रीच द सिटी बिफोर मिडनाइट. बट वो मैनेज करेगा कि वो सिटी में मिडनाइट से पहले, 12 बजे से पहले पहुंच जाए. सो इसमें दो भी यूज हुआ, येट भी यूज हुआ. सो अगेन दिस इज अ कोरिलेटिव कंजक्शन. You have learned about coordinating conjunction, subordinating, correlative conjunction. I hope you understood. Please do practice at home. Do all the exercise in your book as well as in your notebook. You have a nice day.